ایران عراق وار 8 سال چلی، یہ 5 ہفتوں میں جو ہے گھبرا گئے۔ آج تو انہوں نے خیر گالی لکھی ہے، میں وہ گالی آپ کے ساتھ آن ایئر نہیں کہہ سکتا جو گالی انہوں نے لکھی ہے۔ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ان کی نیوی اڑا دی، تو آ جائے نا یہ اسٹریٹ آف ہارمز کھلوا لیں، کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ امریکنز کہتے ہیں ہم نے ایرانین آئل پہ قبضہ کرنا ہے۔ وہ تو بہت ہی جہالت کی بات کریں گے امریکن۔ وہ کہتے ہیں کہ منگل کو آل پاور پلانٹس اینڈ بریجز ان آل ان ون ٹیوزڈے کو وہ اڑا دیں گے۔ امریکہ کو یہ شاید سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ شاید وہ یہ اس طرح حملہ کر کے ریجیم چینج کر لیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو تو وننگ ٹرافی چاہیے، وہ تو سرنڈر کی تلاش میں ہے، وہ تو وننگ ٹرافی کی تلاش میں ہے۔ امریکہ نے تقریباً کوئی 10,000 مقامات پہ حملہ کیا ہے ایران۔ انہوں نے یہ میرے خیال میں جنگ کی تیاریاں بہت عرصے پہلے سے کی ہوئی، کوئی شورٹی نہیں کہ آپ اگر نیوکلیر پاور بن جائیں گے تو آپ کو جو ہے سیکورٹی مل جائے گی۔ السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ایک ٹویٹ سامنے آ چکا ہے جس میں انہوں نے منگل کو ایک ڈی ڈے کے طور پہ اناؤنس کیا ہے۔ میں نے ریکویسٹ کی آصف درانی صاحب کو کہ وہ میرے ساتھ ذرا اس کو ڈپلومیٹک لینگویج میں اور وار لینگویج میں ڈی کوڈ کریں۔ السلام علیکم آصف درانی صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیسے مزاج آپ؟ ٹھیک خیریت سے؟ ٹھاک۔ درانی صاحب وہ کہتے ہیں کہ منگل کو آل پاور پلانٹس اینڈ بریجز ان آل ان ون ٹیوزڈے کو وہ اڑا دیں گے۔ اڑا دیں گے تو پھر کیا فرق پڑے گا؟ مطلب یہ کہ ریزسٹنس تو ایران نے شو کرنی ہے، وہ ایران کرے گا۔ اس کی اگر اتنے ہی دباؤ میں آنا ہوتا تو ایران بہت شروع میں آ چکا ہوتا۔ اس وقت امریکہ نے تقریباً کوئی 10,000 مقامات پہ حملہ کیا ہے ایران پچھلے 5 ہفتوں میں، تو اس کا نتیجہ تو ان کو جو ہے میرے خیال میں ان کی توقعات کے مطابق تو نہیں نکلا ہے۔ وہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ایران کی لیڈرشپ کو ڈیسیمیٹ کیا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ان کو کتنی جلدی انہوں نے ریپلیس کر دیا، کیونکہ پچھلے 47 سالوں میں ایران نے اپنا ایک سسٹم جو ہے ایوالو کیا ہے، اور وہ انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کیا ہے، جس کی وجہ سے اگر کوئی سیٹ بیک ان کو ہوتا ہے لیڈرشپ کی کانٹیکس میں، یا خواہ وہ پولیٹیکل ہو یا ملٹری لیڈرشپ ہو، تو وہ فوراً ریپلیس کر دیتے ہیں۔ اور یہ شروع سے ہی انقلاب کے بعد سے یہ ایران میں ایک سلسلہ چل پڑا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1 سال کے اندر ہی عراق نے ایران پہ حملہ کر دیا تھا، 8 سال تک وہ جنگ رہی۔ اس وقت بھی امریکہ جو ہے ان کے پیچھے تھا، صدام حسین کے ساتھ تھا، اور گلف اسٹیٹس بھی جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی تھی صدام حسین کو۔ تو ایران نے اس کو اکیلے ہی اس کو ڈیل کیا تھا، اور اس دوران انہوں نے اپنے مجلس کے انتخابات بھی کرائے، پریزیڈنشل الیکشنز بھی ہوئے۔ ان کے پریزیڈنشل الیکشنز یا مجلس کے الیکشن ایک دن بھی ڈیلے نہیں ہوئے۔ تو یہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ انہوں نے اسٹرینتھن کیا ہے اپنے انسٹیٹیوشنز کو۔ تو امریکہ کو یہ شاید سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ شاید وہ یہ اس طرح حملہ کر کے ریجیم چینج کر لیں گے۔ اگرچہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ریجیم چینج کی، وہ مطلب یہ ہے کہ آیت اللہ خامنہئی کے بعد ان کے بیٹے آ گئے تو اس کو ریجیم چینج کی معنی دے رہے ہیں، لیکن یہ کہ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو دھمکیاں ہیں، بے شک وہ کر دیں، ڈیسیمیٹ کر دیں، جو کریں گے تباہ کر دیں گے، تو ابھی بھی آلریڈی انہوں نے تباہی مچائی ہے۔ اس کا نتیجہ اصل جو ایشو آتا ہے کہ وہ ان کو امریکہ اپنے اہداف حاصل کر سکا یا نہیں، وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو میرے خیال میں تو اب تک تو حاصل نہیں کی۔ نہیں، پر بغیر بجلی اور بغیر پانی کے سروائیو کرنا ایران کی رجیم کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ لوگوں کے پاس بجلی بھی نہ رہے، پانی بھی نہ رہے۔ بیسک نیڈز وہ ہیں جو اگر وہ۔ ہوگا تو پھر میرے خیال میں ایران یہ باقی جگہ پہ بھی ایسے ہی کرے گا۔ آپ یہ ہر جگہ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ وہ تو پھر اس کے آپ یہ سمجھیں کہ ایران کے پاس وہ ویئر تو ہے، وہ کس طرح سے کرے گا، اور انہوں نے یقیناً اس کے آلٹرنیٹ ارینجمنٹس بھی کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ میرے خیال میں جنگ کی تیاریاں بہت عرصے پہلے سے کی ہوئی۔ یہ مثال ایک دن میں تو نہیں بنے، اسی طرح ان کی پروڈکشن بھی ایک دن میں نہیں ہوئی، یہ ڈرونز بھی ایک دن میں نہیں بنے، اس کی پروڈکشن بھی ایک دن میں نہیں ہوئی۔
اور اب تک وہ جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ انوینسیبل سمجھتا تھا اپنے آئرن ڈوم کو، اور آپ نے دیکھ لیا اس میں پینیٹریٹ کر گیا. یہ ایشوز ہیں، وہ میرے خیال میں ایران اس کو کوپ اپ کر لے گا. اچھا، یو تھنک کہ یہ فیز بھی گزر جائے گا اور ایران اپنی ریزسٹنس کو برقرار رکھ لے گا؟ جی اگر وہ نہ ہوتا تو بہت پہلے وہ کر دیتے نا. وہ تو ان کی کیلکولیشنز ٹرمپ صاحب کی اسرائیل کی غلط ثابت ہوئی نا. انہوں نے کہا یہ تو اٹس اے میٹر آف 3-4 days، لیکن ایسا نہیں ہوا. اینڈ اب آگے ہم دیکھ رہے ہیں بوٹس آن گراؤنڈ کی بھی بات ہو رہی ہے، خرق کی بات ہو رہی ہے، یورینیم کو لے جانے کی بات ہو رہی ہے. باری باری بات کر لیتے ہیں. آپ خرق پہ بوٹس آن گراؤنڈ دیکھتے ہیں یا خرق کی تباہی دیکھتے ہیں؟ اس کے نتیجے میں ایران کو پریشر آئے گا یا وہ کر لیں اس سے بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے خرق کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ بہت بڑا رسک لے گا اس میں. ایرانیوں نے تو وہ تو ان کو ان کے اسپیکر جو ہیں طالباف وہ پہلے سے یہ کہہ چکے ہیں آپ کو ہم خوش آمدید کہیں گے اگر آپ آ جائیں ایران کی ٹیریٹری پہ. تو میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کو یہ بہت بڑے رسک لینے پڑیں گے. اور اب یہ امریکہ کے اندر ایران کے خلاف جنگ کے سلسلے میں تو کوئی ایسی حمایت نظر نہیں آتی. اور پھر یہ کہ اب اس میں اگر امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں یہ رسک لیں کہ وہ اپنی فوجیں بھیج دیں ایرانی ٹیریٹری پہ، اور پھر اگر وہ یہ اس بات پہ راضی ہیں کہ ان کے فوجوں کی ڈیتھ ہو جائے اور ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ امریکہ ریسیو کرنے کے قابل ہوگا یا وہاں پہ یہ ایپیٹائٹ پائی جاتی ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو کہ بظاہر نہیں ہے اس وقت، تو ایسی کوئی اس میں حمایت نہیں ہے. یہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت بڑا جوا کھیلیں گے. پر آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ایسے فکس میں آ گئے ہیں کہ اب جوئے کھیلے بغیر ان کے پاس کوئی سیف ایگزٹ نہیں ہے یہاں سے، یا آپ سمجھتے ہیں ان کے پاس کوئی سیف ایگزٹ اویلیبل ہے؟ دیکھیے وہ ایک سپر پاور کے پریزیڈنٹ ہیں. وہ آج کہہ دیں کہ یہ بس جنگ بند ہے، جنگ بند ہو گئی، سیف ایگزٹ کی ان کو کیا ضرورت. وہ کوئی سیف ایگزٹ تو کمزور طاقتوں کو چاہیے ہوتا. یہ تو پر وہ اگر تو سپر پاور ہے، انہوں نے جنگ شروع کی، وہ اس کو بند بھی کر سکتے ہیں. نہیں، پر اگر ان کے سیز فائر کو ایران نہ مانے اور ڈرونز اور بیلسٹک میزائل چلاتے رہے تو ون سائیڈڈ سیز فائر کیسے چلے گا؟ نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں ایران کی طرف سے تو. وہ ایران نے جنگ شروع بھی نہیں کی ہے، تو وہ میرے خیال میں اگر یہ امریکہ اس کو بند کرتا ہے تو وہ اس کو آنر کرے گا، کیونکہ جنگ بندی میں بہت اہم وہ ہے. مطلب اس میں ایران کی طرف سے جو ایسے وائبس ہیں کہ وہ اس جنگ بندی کو آنر کریں گے. اور اس میں آپ کو یاد دلا دوں، یہ جو ہے ان کے سابق وزیر خارجہ بلکہ وہ وائس پریزیڈنٹ بھی رہے، جواز ظریف، ان کا ایک آرٹیکل فارن افیئرس میں 3 اپریل کو چھپا ہے پرسوں. اور اس میں انہوں نے وہ چونکہ اپنے سسٹم کا حصہ رہے ہیں ایران کے، تو ان کی جو تجاویز ہیں وہ خاصی پریکٹیکیبل ہیں، جس میں وہ نیوکلیر پروگرام پہ لمٹ لگانے پہ تیار ہیں، 3.67% انریچمنٹ پہ تیار ہیں. اس کے بعد وہ ایڈیشنل پروٹوکول IAEA کے جو ہے ان کو سائن کرنے کو تیار ہیں. اور اس کے بعد وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو جو ہے مکمل طور پہ کھولنے کو تیار ہیں. اور شرط یہ کہ ایران کے خلاف جو ہے سینکشنز وہ ہٹا لی جائیں. اور پھر یہ ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ نان ایگریشن پیکٹ سائن کرنے کو تیار ہیں. یہ ان کی تجاویز ہیں یہ ایران کی طرف سے. اور کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف نہ صرف حملہ نہیں کریں گے بلکہ وہ جو آپس میں اکنامک انٹریکشن بھی کریں گے اور سینکشنز ہٹا لی جائیں گی. اور پھر یہ کہ خطے کے لیے جو ریجن کے لیے ایران کی تجویز 1985 میں تھی اباؤٹ ریجنل سیکورٹی ارینجمنٹس، جس میں جو کہ UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن 598 میں
दी गई थी कि उसमें कोस्टल स्टेट्स ऑफ पर्शियन गल्फ will establish a regional security arrangement and continuing with its efforts of non-aggression pact ईरान ने 2015 में तजवीज़ पेश की और इसी तरह हॉर्मोज स्टेट ऑफ हॉर्मोज के लिए भी उनकी जो है एक तजवीज़ है 2019 में पेश की गई है। ये उनके पास जो है वो तजावीज़ तो उन्होंने दी हुई तो इसलिए और फिर ये कि ईरान आप ऐलान और उनके आर्टिकल में बड़ा वाज़ेह है कि ईरान नहीं समझता कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है या वेपन जो है वो ईरान की सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं, जैसे कि अभी भी जो है उन पे ईरान पे हमला हुआ तो वो नहीं। इसी तरह इसराइल जो है वो अगर अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है तो उसकी सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर उसके न्यूक्लियर वेपन नहीं कर रहे क्योंकि उस पर ईरान ने हमला कर दिया। तो इसलिए ये कोई श्योरिटी नहीं कि आप अगर न्यूक्लियर पावर बन जाएंगे तो आपको जो है सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो इस तरह की जो अगर वो तजावीज़ हैं तो मेरे ख्याल में ये एक तरह का सिग्नल है अमेरिकन को भी कि वो इस पे इन्हें बात हो सकती है और अमेरिका शुड रिस्पॉन्ड टू दैट। पर ये बातें तो बराबरी की सतह पर बैठ के हो सकती है ना, गिव एंड टेक है। डोनाल्ड ट्रंप को तो विनिंग ट्रॉफी चाहिए, वो तो सरेंडर की तलाश में है, वो तो विनिंग ट्रॉफी की तलाश में है। ये तजावीज विनिंग ट्रॉफी तो नहीं देती डोनाल्ड ट्रंप को। नहीं तो ये तो फिर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो है देन ही वोंट हैव एनीथिंग। आई डोंट थिंक सो। अच्छा, अब जरा यूएई पे भी आ जाएं। जो पाकिस्तान और यूएई की टेंशन्स नजर आ रही हैं, आप इनको कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में तो नहीं है, टेंशन तो नहीं। वो रोल ओवर जो उनके वो थे वो हो रही है, हमारे खामखा मीडिया में ऐसे ही फैलाया गया उसमें उसकी सही मालूमात के बगैर। उसमें यूएई ने कोई ना ज्यादती की है ना हमने उनके साथ कोई ज्यादती की है। और वो बाकायदा उसमें हाई लेवल पे जो है एक्सचेंज ऑफ विजिट्स होते रहे हैं। ये मैं नहीं समझता कि इसको हम कोई टेंशन की बात कर सकते। नहीं, पर डिस्प्लेयर में ही पैसे वापस मांगे हैं उन्होंने, कोई प्लेयर में तो नहीं मांगे। इट्स अ साइन ऑफ ये डिस्प्लेयर। आप कैसे कह सकते हैं? ये आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं? वरना रोल ओवर कर देते वो। पाकिस्तान ने को उनको नहीं, वॉलेट। बात ये है कि आप यानी आपने व्हाई यू हैव टेकन यूएई फॉर ग्रांटेड। आप एक तरीका है उसके तरीके से आप चल रहे हैं और पाकिस्तान में आपने वजारत खारजा ने उसका बड़ा क्लियर स्टेटमेंट किया है। मैं नहीं समझता वी शुड बी रीडिंग मच इनटू दैट। पर कुछ पिछले 1.5-2 साल से ही था। उन्होंने पाकिस्तानियों के वीजों पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, और भी रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तानियों पे लगाई हुई थी, तो वो फिर नजर तो आ रहा था यूएई। नहीं तो फिर वो अगर रिस्ट्रिक्शन पिछले साल 1.5 साल तो फिर रोल ओवर क्यों कर रहे थे वो? एक एक 2-2 माह का कर रहे थे ना, वो कोई लंबा तो नहीं कर रहे थे जैसे सऊदी अरब या चाइना कर रहे थे, वैसे तो नहीं कर रहे थे। वो मर्जी है, एक अरेंजमेंट है उसके साथ आपने म्यूचुअली हमारे लोगों ने भी तो वो साइन किया है ना। इसका मतलब है कि आपने जो भी एग्रीमेंट किया है उसके तहत आप पाबंद है, वो भी पाबंद। क्या हम इसको सऊदी अरब यूएई टेंशन्स में ये ना समझें कि चूंकि हम सऊदी अरब के साथ हैं, लिहाजा यूएई अब पाकिस्तान पे वो ट्रस्ट नहीं करता नहीं, कि ये बस। कोई बात नहीं है। हम यूएई के साथ भी हैं, हम गल्फ तमाम स्टेट्स जो हैं उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरबिया के साथ हमारा आज का तो नहीं है बहुत। वो उस वक्त से जब कुवैत पे उसका हमला हुआ था, बल्कि उससे पहले जब 79 में मक्का पे वो हुआ था, कब्जे की कोशिश हुई थी। उस वक्त से हम सिक्योरिटी लेवल पे उनके साथ हैं। फिर हमने यूएई की भी सिक्योरिटी में हमने खासा मदद किया है। हमने किस गल्फ स्टेट की सिक्योरिटी में मदद की है? सबके साथ किया। और वो हमारे बड़े अच्छे मिसाली ताल्लुकात। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये ईरान वॉर में हम बहुत ज्यादा ईरान की तरफ हमारा झुकाव नजर आया है, ये जो गल्फ किसने कंट्री। कहा? ये किसने कहा? हम यूनाइटेड नेशंस में भी हमने ईरान के हक में करारदाद में वोट डाला है, और फिर जो ये यूज ऑफ फोर्स वाली करारदाद थी उसको भी हम अपोज कर रहे थे। नहीं, यूज ऑफ फोर्स कौन सी यूज ऑफ फोर्स की? जो जिसको रशिया और चाइना ने ब्लॉक किया है कि अब नाए हुर्मुज को यूज ऑफ फोर्स से खुलाया जाए। देखिए वो यूएन के चार्टर के मुताबिक है तो वो तो
परमानेंट पावर्स हैं, उन्होंने ये यूज ऑफ फोर्स का तो हर सूरत में आप मुखालफत करना चाहिए। यूज ऑफ फोर्स जो है वो यू कांट चेरी पिक इश्यूज के बारे में। कल को यूज ऑफ फोर्स कहीं पे भी हो सकेगी फिर, तो वन हैज टू बी अ रैशनल थिंकर। ये गल्फ स्टेट्स में अमेरिकन बेसिस है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो जस्टिफाइड हैं? क्या उन्होंने उनको वो सिक्योरिटी दे दी? ये बात जो है ये गौर करने की है, उसके लिए जो है वो सिफारती सतह पे बातचीत करने की। नहीं, पर डिप्लोमेसी तो चलती नजर नहीं आ रही, सफारतकारी तो यही नाकाम नजर आ रही। डिप्लोमेसी यही डिप्लोमेसी वार भी एक इट्स अनदर वे ऑफ डिप्लोमेसी। इसलिए डिप्लोमेसी जो है वो सिर्फ वो टेबल पे बैठ के नहीं होती, वो हर तरीके से उसके कई तरीके हैं। नहीं, पर देखिए ना, जंगों का इख्तिताम तो मेज पर ही होता है, और मेज पर जी अभी कोई आने होगा, के तो लिए। वो अब भी होगा, अब भी ऐसे ही होगा। ईरान इराक वॉर 8 साल चली थी, हम ये 5 हफ्तों में जो है घबरा गए हैं, ये ऐसा नहीं है। वो इसमें, बस पर्दा जो है बातचीत चल रही है। आपको कितनी लंबी ये जंग चलती नजर आती है? हाउ लॉन्ग आई यू थिंक? कांट से, आई डोंट हैव अ क्रिस्टल बॉल से कितनी है लंबी, लेकिन ये है कि इसमें मुज़ाकरात जो है वो अभी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पे हैं जो पार्टीज हैं, लेकिन उनको फिर दे विल हैव टू नैरो डाउन, और उसमें उनको जो है फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना पड़ेगी। फ्लेक्सिबिलिटी तो वही दिखाएगा ना जो कमजोर पोजीशन में आएगा, जो हार रहा होगा। नहीं नहीं, जरूरी नहीं, नहीं ऐसी क्या बात। कमजोर पोजीशन में कोई भी नहीं है, इस सूरत हाल में कोई भी कमजोर पोजीशन में नहीं है। आप सिर्फ उसको असले की उसमें जो है वो उनके पास एयर वो नहीं है। वो ट्रम्प साहब कहते हैं कि हमने जो है कि नेवी उड़ा दी, तो आ जाए ना ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुलवा लें, क्यों नहीं कर रहे हैं? पर वो कह रहे हैं ना कि अब आज तो उन्होंने खैर गाली लिखी है, मैं वो गाली आपके साथ ऑन एयर नहीं कह सकता, जो गाली उन्होंने लिखी है और कहा है। देखिए वो उन्होंने जो तरबियत है वो उससे वाजे हो गई है। उससे खाली ईरान ही नहीं, क्या यूरोप में कौन खुश है उनके साथ? उनके साथ जो है उन्होंने जो है वो उनके बारे में कैसे क्या रिमार्क्स दिए थे वलीयत के खिलाफ सऊदी क्राउन प्रिंस के एमबीएस खिलाफ। मोहम्मद बिन सलमान के जी खिलाफ। जी जी, तो आप ये उनकी तरबियत की खामी है। अब क्या किया जाए कि अमेरिकन लोगों ने उनको इलेक्ट किया है। आपको आपको दो आप हफ्ते इस सूरत में डिप्लोमेसी जो है, देखिए डिप्लोमेसी जो है वो एक तहजीब के दायरे में होती है। बद तहजीबी का मुजाहरा करेंगे तो उसके नताइज भी मुस्बत नहीं होंगे। आपका ख्याल है जो वो गालम गलूच करते हैं उसके नतीजे में जो सफारतकारी है वो कमजोर हो जाती है? मेरा ख्याल नहीं है, मेरे ख्याल में सब कोई उससे कोई इख्तिलाफ नहीं करेगा। पर हु वो शायद केयर्स अबाउट वो ही ईरान इज को अ बुली प्रेसिडेंट? करते हैं कि शायद ईरान बुली होके उनकी बात मान जाए। ने तो क्या बुली हो गया है? वो पिछले 47 साल से तो बुली नहीं हुआ। उसने अमेरिका को अपने मुल्क से निकाल दिया था, वो कैसे बुली हुआ? नहीं तो अब आपको लगता है कि जितनी मर्जी तबाही हो जाए ईरान में, ईरान जो है ऑन द टेबल नहीं आएगा इस तरह? नहीं, इस तरह बुली होके तो हरगिज नहीं आएगा मेरे ख्याल। और दूसरी सूरत में आएगा तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के पल्ले कख नहीं रहेगा, वो मिड टर्म इंतखाबात हैं, उन्हें तो विनिंग ट्रॉफी चाहिए। नहीं, वो इस तरह से नहीं होगा। उनको जो है एहसास करना पड़ेगा, उनको जो है ये वो माँ बदौलत बन के अगर वो हुकूमत करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा नहीं चल सकेंगे। एंड डू यू सी के जो 440 किलो यूरेनियम है ईरान के पास, वो किसी जवाद जरीफ साहब की तजावीज की रोशनी में वो अमेरिका के हवाले किया जा सकता है? नहीं, अमेरिका के तो हवाले नहीं होगा। वो जो उन्होंने तजवीज दी है कंसोर्शियम बनाने की, हम्म। जो गल्फ स्टेट्स जो है उनका एक कंसोर्शियम हो जो एनरिचमेंट के लिए, हम्म। और वो आईएईए सेफ गार्ड्स में हो, तो उसमें अमेरिका को क्या एतराज हो सकता है? और जो अमेरिकन कहते हैं हमने ईरानियन ऑयल पे कब्जा करना है, जैसे वेनेजुएला के ऑयल पे कब्जा किया है, आपको वो पॉसिबल नजर आता है? फिर वो तो बहुत ही जहालत की बात करेंगे अमेरिकन। मेरे ख्याल में ऐसा होने वाला नहीं है। नहीं, पर उन्होंने वेनेजुएला के ऑयल पे तो कब्जा किया है, वो वो तो अब उनका। वेनेजुएला कुछ और है, ईरान कुछ और है, इसलिए आपके सामने वेनेजुएला तो वो उन्होंने जो इनसाइडर जॉब था जिस तरह से करके उन्होंने उनको
प्रेसिडेंट को उठा के ले गए, तो यहाँ से करके उन्होंने कोशिश की कि वो रिजीम चेंज करेंगे, डेसिमेट कर दिया लीडरशिप को। क्या नतीजा निकला उनका? आफ्टर द वॉर अरब ईरान ताल्लुकात क्या होंगे? मुझे लगता है अगले 30-40 साल अरबों और ईरान की फिर लड़ाई जारी रहेगी, कशीदगी जारी रहेगी, टर्म्स नहीं होंगे। अगर इस तरह की सूरत हाल रहेगी तो शायद फॉर एवर वॉर होगी, लेकिन मेरे ख्याल में गुड सेंस वुड प्रिवेल। और उसमें मैं फिर डॉक्टर जवाद जरीफ की जो आर्टिकल है उसको दूंगा। मैं समझता हूँ कि इसमें विजडम भी है, और उनकी जो हुकूमत है मेरे ख्याल में उनकी भी इसमें कंसर्न शामिल है। और वो इसी तरफ उसका इशारा है कि जो खत्े के मामले के वेस्ट एशिया में एक रिजीम बनाई जाए, और जिसके तहत जो खत्े के ममालिक हैं खुद ही अपनी सिक्योरिटी के मामले में वो करें। अगर जो मैं कह सकता हूँ कि इस मामले में गल्फ स्टेट्स की तरफ से रेजिस्टेंस होगी इनिशियली, लेकिन आप ये देख लें कि उनका जो है, उनको अभी इस वक्त जो वॉर हुई है उसमें उनको उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यूएई की इकॉनमी पे बुरा असर पड़ा है, बहरीन की इकॉनमी और बाकी गल्फ स्टेट्स की इकॉनमी पे बुरा असर पड़ा है। खाली वही नहीं है, इसका आप समझिए कि खत्ते पे बुरा असर पड़ा है। पाकिस्तान पे आपने देखा कितना बुरा असर पड़ा है, जो ऑयल प्राइसेस जिस तरह से बढ़ गए। बाकी दुनिया में भी, यूरोप में इतना हुआ कि अब वो आज की खबर है कि $200 पे चला गया है पर लीटर। तो आप ये देख लें कि उसकी कहाँ, पर बैरल सॉरी, तो वो ये सिचुएशन कहाँ जा रही है। इसलिए वो खाली ये खत्ते तक महदूद नहीं रहेगा। और ये इस बात का उम्मीद है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एहसास करेगी। पर अब वो कहते हैं हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए पास तो अपने लिए सफिशिएंट ऑयल है, दुनिया जाए भाड़ में, हमें क्या प्रॉब्लम है दुनिया की। वो तो मजाक उड़ा रहे हैं दुनिया का कि जिसको चाहिए हमसे आकर ले ले। वो है तो वहां पे फिर अमेरिका में क्यों ऑयल बढ़ गया है? उधर प्राइसेस क्यों बढ़ गई? लेकिन फिलहाल तो वो यही कह रहे हैं कि यूके को चाहिए तो हमसे ले ले, फ्रांस को चाहिए तो हमसे भाई ले ले। वो आप ये जो उनके हैं ना, वो आई थिंक वो नॉन सीरियस उनके स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट ट्रम्प के। और हम जो है वो सीरियस इशू डिस्कस कर रहे हैं, और ये इसलिए ही तो प्रॉब्लम आ गया है हम्म। कि एक बहुत ही एक वो शख्स इस वक्त अमेरिका पे रूल कर रहा है जिन्होंने जो कायदा कानून है उसको बिल्कुल पसे पुश डाल दिया है। और हम्म। वो समझते हैं कि शायद वो बादशाह सलामत बन गए हैं, और उनका हर लफ्ज जो है वो कानून की हैसियत रखता है। लेकिन उनको मेरे ख्याल में बहुत जल्द इसका एहसास हो जाएगा, और उनको जो शॉक्स मिलने वाले हैं और मिल रहे हैं वो मेरे ख्याल में उनके लिए आइंदा के लिए काफी होंगे। शॉक्स से क्या मुराद है आपकी? हाउ विल यू डिफाइन जो शॉक्स में? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स इंक्लूडिंग यूरोप। उन्होंने जो है नेटो को भी जो है ऑलमोस्ट खत्म करके रख दिया। नेटो ममालिक जो हैं उनके वो उनके साथ नहीं है। ये साहब खुद फैसला कर लेते हैं और समझते हैं कि बाकी दे फॉलो हिज लाइन, तो ऐसा हो नहीं रहा। तो ये शौक्स हैं उनके लिए। यही वजह है वो जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके सामने है। और कुछ ये भी कहा जा रहा है कि ये ईरान अमेरिका वॉर में जो अरब कंट्रीज हैं, जीसीसी हैं, वो अमेरिका पे दबाव डाल रहे हैं कि फिनिश द जॉब, अनफिनिश्ड वॉर छोड़ के ना जाएं, दे आर नॉट इन फेवर ऑफ सीज फायर। वो कर लें, मेरे ख्याल में ये भी उनकी जो है वो दूरअंदेशी नहीं होगी, और ये उसका उनको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। क्योंकि जो जोग्राफिकल एडवांटेज ईरान को है अमेरिका को नहीं है। और अमेरिका जो है बूट्स ऑन ग्राउंड पे अभी तक राजी नहीं है। ये करके देख लें, उनको फिर मेरे ख्याल में उसके नताइज मिल जाएंगे। और मैं डोनाल्ड नहीं कह ट्रंप रहा हूँ, खुद अमेरिका के अंदर जो एनालिस्ट हैं दे आर सेइंग दैट। पर लगता है जो उनके नए उन्होंने अपने चीफ बनाए हैं वो बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए राजी हैं, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आर्मी चीफ के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है। और वो रख दें तो फिर वो कर दें, फिर पता चल जाएगा। व्हाट इज स्टॉपिंग देम टू सेंड देयर बूट्स ऑन ग्राउंड? और ये कहा जा रहा है कि चाइना और रशिया भी किसी सीज फायर के हक में नहीं, दे आर एंजॉयिंग दिस वॉर।
ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो ये लगता है वो कैफे गॉसिप है अच्छा, इस तरह की। नहीं पर जितना वाइब्रेंट रोल वो प्ले कर सकते थे इसमें, वो उन्होंने नहीं किया, वो खामोश रहे नहीं, ज्यादा। वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल लेवल पे जो भी था उन्होंने किया, उन्होंने फोर्स, यूज ऑफ फोर्स के खिलाफ किया है। और ये उनका रोल है मेरे ख्याल में, ये एक तरह से अमेरिका को वॉक ओवर तो नहीं दिया। बहुत शुक्रिया आसिफ दुरानी साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेयर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी थैंक यू सो मच।